حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ تو میرے چھوٹے بھائی بہن مجھے یہ گفٹ دیتے ہیں، گفٹ لینا اور دینا ہمارے نبی کی سنت ہے، پھر میرا چھوٹا بھائی کیک کھلانے کو کہتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو کسی ایک شخص کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ ہر دوسرا فرد اس ناجائز کام کے اندر مبتلا ہے، اور ویڈیو کا اینڈ ہونے تک آپ جانیں گے کہ یہ بیماری اور یہ گناہ کا کام ہمارے معاشرے کے اندر ہر فیملی کے اندر پایا جاتا ہے، اور سب سے تعجب والی بات یہ ہے کہ لوگ اس گناہ سے آگاہ بھی نہیں بلکہ اس کو گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ آپ اس کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب حلال ولاگنگ، اسلامک ولاگنگ کے نام پر پیج چلانے والے لوگ، عالم کہلانے والے لوگ بھی اس مسئلے سے واقف نہیں ہیں، تو پھر عوام کا کہنا ہی کیا ہے۔ لہٰذا ویڈیو کے آخر تک ویڈیو دیکھنے والا ہر شخص یہ چیز اپنے سے ریلیٹ کر پائے گا کہ کبھی نہ کبھی وہ اس چیز کے اندر مبتلا ہوا ہے۔ جیسا کہ ویڈیو کے اندر آپ نے سنا کہ ولاگر صاحب نے کہا کہ ہمارے چھوٹے بہن بھائیوں نے مجھے برتھ ڈے پر جو ہے وہ تحفہ دیا، اور ویڈیو میں دیکھنے ہی سے لگ رہا ہے کہ چھوٹے بھائی کی عمر 9-10 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ لہٰذا شریعت کے اندر نابالغ بچے سے تحفہ لینا یا اس کا سامان استعمال کرنے کے تعلق سے شرع پاک نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمیں اس مسئلے سے آگاہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، ولاگر صاحب نے کہا کہ تحفہ لینا دینا سنت ہے، لہٰذا ناجائز کام کے اوپر سنت کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ تحفہ لینا دینا مطلقاً سنت ہے، لیکن نابالغ بچے کا تحفہ لینا سنت نہیں بلکہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے، اور کسی بھی ناجائز کام کے اوپر سنت لفظ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ گھر میں آئے مہمان کو کھانا کھلانا سنت ہے اور اسے کھانے میں کتے کا گوشت کھلایا جائے، لہٰذا اس کو سنت نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ تو ناجائز کام ہے اور سنت جائز کام کے لیے ہوتا ہے۔ تحفہ لینا دینا جو مطلقاً سنت ہے وہ نابالغ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ نابالغ کے ساتھ تو یہ معاملہ ناجائز کا ہے۔ اور آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ جس طرح شریعت نے تمام لوگوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا ہے، محفوظ کیا ہے، وہیں شریعت نے نابالغ بچے کے حقوق کو بھی اتنا پروٹیکٹ اور محفوظ کیا ہے۔ اس کے دلائل اور اس کی وضاحت آپ آگے اس ویڈیو کے اندر سنیں گے۔ اس مسئلے کے متعلق سب سے پہلے دیکھتے ہیں فتاوی رضویہ جلد نمبر اس کی 19 اور صفحہ نمبر اس کا 637 کے اوپر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کیا مسئلہ ارشاد فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر بچے نے طلاق دی یا ہبہ کیا یا صدقہ کیا یا سستی فروخت کی یا زیادہ قیمت پر خریدا جو بازار کی کمی بیشی سے زیادہ ہو وغیرہ وغیرہ، تو یہ کام بچے کے لیے ولی اس کی نابالغی میں کرے تو جائز نہ ہوں گے، لہٰذا خود بچے نے کیے تو باطل ہوں گے اور ولی کی اجازت پر موقوف نہ رہیں گے، اور اگر خود بھی نابالغ ہونے کے بعد جائز کرنا چاہے تو جائز نہیں ہو جائیں گے۔ یعنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بچہ اگر کسی کو ہبہ کر دے اور بڑا بھی اس کی اجازت دے دے تو بھی اس کے اجازت سے وہ کام جائز نہیں ہوگا، یا پھر نابالغ بچے نے کوئی ایسی چیز خرید لی کہ جو بازار کی قیمت سے زیادہ ہے، بیچنے والے نے بچہ سمجھ کے اس کو دے دیا، تو یہ بے بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی کوئی 10 روپے کی چیز ہے، کسی نے بچے کو ہاتھ میں 100 کا نوٹ دیکھا اور اسے 100 روپے کی بیچ دی، تو اس کا یہ خریدنا بیچنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بچے کے ہاتھ میں کوئی مہنگی چیز تھی اور اس نے جا کے کسی کو یہ بیچ دی، کسی دوسرے سمجھدار کو، لینے والا جانتا تھا کہ یہ تو مہنگی چیز ہے، تو بچے کے ساتھ یہ معاملہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ بچہ بھی ہبہ کرنا چاہے، صدقہ کرنا چاہے تو اس کے تعلق سے وہ خود بھی یہ معاملہ نہیں کر سکتا، لہٰذا نابالغ بچے سے جو ہے سامان لینا، تحفہ لینا، اگرچہ اپنا بھائی ہو تو بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بار شریعت جلد 3 اور صفحہ نمبر اس کا 81 کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں کہ باپ کو جائز نہیں کہ نابالغ لڑکے کا مال دوسرے لوگوں کو ہبہ کر دے، یعنی باپ بھی نابالغ بچے کے مال یا اس کا پیسہ یا اس کو کوئی سامان دوسرے کو ہبہ کر دے، اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں، اور بچہ اپنا مال ہبہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا کہ اس کا دیا ہوا ہبہ اس کو واپس کرنا ہوگا۔ یعنی نابالغ بچہ اگر اپنی مرضی سے بھی کسی کو کوئی چیز دینا چاہے تو وہ نہیں دے سکتا، اور یہی حکم صدقے کا ہے کہ نابالغ اپنا مال نہ خود صدقہ کر سکتا ہے نہ اس کا باپ صدقہ کر سکتا ہے، یعنی نابالغ بچے کا مال اس کا باپ بھی صدقہ نہیں کر سکتا۔ البتہ اتنا ہو سکتا ہے کہ صدقہ باپ بچے کے ہاتھ سے کروائے لیکن پیسہ باپ کا ہو اور وہ بچے کو عادت ڈلوانے کے لیے صدقہ خیرات کرائے، اس کی اجازت ہے۔ البتہ نابالغ بچہ نہ تو صدقہ کر سکتا ہے، نہ ہی اپنا مال ہبہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی باپ اپنی مرضی سے بچے کا مال دوسرے کو دے سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بچے کے نام سے کوئی چیز خرید لی جاتی ہے اور بعد میں وہ اس بچے کے علاوہ دوسرے بچوں میں بھی شیئر کر دی جاتی ہے، یا تو اس کی وہ ذاتی چیز ہوتی ہے، حالانکہ اس کے قبضے میں نہیں آتی، تو ایسی صورت میں بھی والدین نے کوئی چیز بچے کی نابالغ پن میں خریدی ہے لیکن اس پہ بچے کا اختیار یا قبضہ نہیں ہے، بچہ قدرت نہیں رکھتا قبضہ کرنے کا، اپنے انڈر میں وہ چیز لینے کا، تو بھی اس صورت میں ماں باپ اس کے ملکیت کے مالک نہیں ہوں گے، تو ایسی صورت میں وہ ملکیت
अगरचे वो सामान माँ बाप की मिल्कियत में होगा तब भी उसका मालिक जो है वो बच्चा कहलाया जाएगा। इसी के ताल्लुक से आला हज़रत अज़ीमुल बरकत से एक सवाल के जवाब में फतावा रज़ी जिल्द नंबर 25 और सफ़ा नंबर इसका 444 के ऊपर इरशाद फरमाते हैं कि बाप जो चीज़ अपने नाबालिग बच्चे के नाम से ख़रीदे वो उसके लिए हिबा होती है, यानी बच्चे के लिए हिबा होती है, और बाप ही के कब्ज़े से नाबालिग की मिल्क हो जाती है। यानी बच्चे के लिए कोई चीज़ ख़रीदी पेरेंट्स ने और ख़रीदने के बाद उसको नहीं दी, माँ बाप के ही हाथ में कब्ज़े में, उसके बाद भी जो है उसके मुतालिक वो मालिक बच्चा ही रहेगा। और इसी तरीके की ये गलती हमारे माशरे के अंदर पाई जाती है कि बच्चे के हाथ से लोग चीज़ लेके खा जाते हैं, चिप्स का पैकेट, बिस्किट वगैरह लेके खा जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बच्चे को जब आप खिलाने के लिए गोद में लेते हैं तो बच्चा खुद भी नासमझी में कोई चीज़ दे देता है बड़े के मुंह में और लोग उसको खा जाते हैं। तो नाबालिग बच्चे से मुराद गोद वाले से लेकर बालिग होने तक, चाहे वो 10-11 साल का लड़का हो, उसकी भी चीज़ ना ले सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना ही वो अपनी मर्ज़ी से किसी को दे सकता है। वो सदका भी करना चाहे तो नहीं कर सकता, और इसी तरह माँ बाप भी उसके माल से किसी को नहीं दे सकते। लेकिन होता ऐसा है कि बच्चे के हाथ में कोई खाने पीने की चीज़ देखी, किसी बड़े ने उसको गोद में लिया तो बच्चा उस बड़े को चीज़ खिला देता है और लोग उसको खा लेते हैं। और इसके अंदर तो अक्सर लोग मुब्तला है कि अपने घर के अंदर देखेंगे आपके छोटे बहन भाई या छोटे बच्चे होते हैं तो बड़े लोग अक्सर ऐसा मामला जो है वो कर लेते हैं। इसी तरह पेरेंट्स की एक गलती और होती है कि जब कोई आने वाला मेहमान बच्चे के हाथ में पैसे या कोई चीज़ खाने पीने की देता है तो उसके मुतालिक शरीयत के अंदर 2 हुक्म है। सबसे पहला ये कि वो चीज़ अगर क्वांटिटी में ज़्यादा है और हमारे उर्फ में ये समझी जाती है कि ये अकेले बच्चे के लिए नहीं बल्कि फैमिली के लिए है तो उसको फैमिली के लिए समझा जाएगा, तब उसके पेरेंट्स उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो चीज़ इतनी है कि उर्फ से ही मालूम होता है कि ये सिर्फ बच्चे ही के लिए दी है तो फिर वो बच्चे ही के हक़ में आएगी, पेरेंट्स उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी अब 2 आसान मिसाल समझे कि जैसे उर्फ के अंदर बच्चे को 5-10 रुपये किसी ने दिए और ये उन्हीं की मिल्कियत हो जाता है, उर्फ में भी ये समझा जाता है कि उनके चीज़ खाने के लिए हैं, तो इस पैसे को पेरेंट्स ये नहीं कह सकते कि आप दूसरे बहन भाइयों को सबको मिला के चीज़ खिलाओ या उसका इस्तेमाल किसी दूसरे बच्चे को दे दे कि तुम्हें तो कल भी मिले थे, तुम ये पैसा भाई को दे दो, बहन को दे दो। इसका पेरेंट्स को भी इख्तियार जो है वो नहीं है, लेकिन होता अक्सर घरों के अंदर यही है। तो वो रकम इतनी अगर कम है कि बच्चे ही के खाने पीने के लिए है तो वो मालिक उसका समझा जाएगा। लेकिन घर में आने वाले ने किसी ने बड़ी रकम दी जैसे 100-500, और हमारे उर्फ में ये चीज़ समझी जाती है कि इतना बड़ा नोट बच्चे के खाने के लिए नहीं होता बल्कि पेरेंट्स को देना मकसूद होता है, लेकिन उनकी इज्जत की वजह से बच्चे को दे दिया जाता है तो ये मिल्क जो है वो पेरेंट्स की कहलाई जाएगी। इसी तरीके से खाने पीने के फल वगैरह आते हैं या मिठाई के डब्बे वगैरह आते हैं, अगर वो मोहब्बत में बच्चे के हाथ में दे दिए तो भी ये समझा जाएगा कि ये फैमिली के लिए आया था। और अगर एक आध फ्रूट कोई बच्चे को ख़ास उठा के दे दिया तो वो उसकी अपनी ज़ाती मिल्क हो जाएगा। इसी के ताल्लुक से मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहार शरीयत की जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर इसका 78 से 79 के ऊपर एक मसला इरशाद फरमाते हैं कि नाबालिग को मिठाई और फल वगैरह खाने की चीज़ें हिबा की जाए, उनमें वालिदैन खा सकते हैं। ये उस वक्त खा सकते हैं जबकि करीने से ये चीज़ मालूम हो कि इस बच्चे ही को देना नहीं बल्कि वालिदैन को देना मकसूद है, मगर उनकी इज़्ज़त का लिहाज रखते हुए बच्चे को दी। यानी वही कि अगर तादाद ज़्यादा है, कोई किसी के घर आया, केले वगैरह लाया, फल वगैरह लाया, बच्चे के हाथ में थैली दे दी तो इसका मतलब ये बच्चा उसका मालिक नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप कोई फल खा रहे हो और दूसरा बच्चा आ जाए किसी का और आपने एक फल उठा के उसको दे दिया तो अब ये पेरेंट्स उस बच्चे के नहीं खा सकते क्योंकि यहाँ ख़ास बच्चे ही को देना मकसूद होता है। ठीक इसी तरीके से पैसों वगैरह का मामला है जिससे उर्फ में ये मालूम चले कि ज़्यादा रकम में बच्चे को नहीं दी जा सकती तो उसका मालिक बच्चा नहीं बल्कि पेरेंट्स बनेंगे, और जो रकम बच्चे को दी जा सकती है तो उसके ताल्लुक से उसके मालिक जो है वो बच्चा बनेगा। तो अब ये चीज़ समझनी चाहिए कि लोग जो है हलाल ब्लॉगिंग या इस्लामिक ब्लॉगिंग के नाम पे एक तो मामला नाजायज़ होता है और उसके ऊपर उसको सुन्नत भी बोलते हैं। हालांकि यहाँ सुन्नत बोलना मुतलक बोला गया है, ख़ास इसके अंदर रियायत मिल सकती है, लेकिन नाबालिग बहन भाई का कलम जो वीडियो के अंदर दिख रहा है जो कि 5-10 रुपये का पेन है और उस छोटे भाई ने अपने पैसों से ख़रीद के दे दिया उसका लिए। और ये ऐसा काम है कि आप देखेंगे हर शख्स इसके अंदर मुब्तला है, छोटे बच्चों की चीज़ खाना, सामान इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह के अंदर हर फैमिली इसके अंदर कहीं ना कहीं मुब्तला है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा ये वीडियो किसी एक शख्स के लिए नहीं बल्कि हर शख्स इसको देखेगा तो फील करेगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी मेरा किसी से कोई इस वीडियो के अंदर कोई मुतालबा नहीं है कि किसी को तहकीक करनी हो तो सालों साल आराम से कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ना ही मैं किसी से तौबा रुजू का कहने वाला हूँ, क्योंकि शरीयत का हुक्म क्या है वो सामने वाले खुद भी जानते हैं कि नाबालिग का सामान लेने के बाद उसको वापस करके या तो लोगों में बता दे कि भाई मैंने इसको वापस कर दिया, मैंने गलती से लिया था, और इस मसले को दुरुस्त भी कर ले ताकि देखने वाले लाखों लोग ये ना समझे कि छोटे भाई से तोहफा लिया जा सकता है जबकि तोहफा लेना वो नाजायज़ है, ताकि लोगों के इल्म में सही मसला है। अगर अपनी अना और नफ्स का मसला ना बने तो इस वीडियो की वजाहत करनी चाहिए। बहुत सारे जहन में ये चीज़ आती है कि ये वीडियो या तो अपने शोहरत के लिए या फिर दूसरे की बुलंदी से हसद के लिए बनाई जाती है, जबकि हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप खुद इमेजिनेशन करें कि अगर आपको ये सारे गलत मसले जो ब्लॉगिंग के नाम पे इस्लामिक कंटेंट
कंटेंट के नाम को आपको परोसे जाते हैं। अगर हम इनकी वजाहत ना करके लोगों के सामने ना लाएं तो आप कभी भी इन मसलों को नहीं जान सकते और आप भी इन पे अमल करेंगे। लिहाजा ये बताने ही से लोगों को ये चीज़ मालूम चलती है कि यहाँ पे ये ख़राबी है और लोग इस ख़राबी को नहीं ध्यान दे पाते, और बताने की वजह से ही लोगों के इल्म में जो है वो मसला आ जाता है। तो यहाँ पे किसी से जलना, हसद वगैरह का मामला नहीं है। शरीयत सबके लिए एक जैसी है। अगर आप कहते हैं कि नाजायज़ काम को बताया ही ना जाए और बताने वाले का नाम जलना है, तो ऐसे कुरान हदीस के अंदर बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज किया गया है, बहुत सारे गलत मामलों को एक्सपोज किया गया है। तो क्या अल्लाह रसूल भी किसी से हसद करते थे कि उनकी गलत चीज़ों को अल्लाह रसूल ने बयान किया, पिछली कौमों की चीज़ों को बयान किया? वो बयान करने का मकसद भी यही है कि आप लोग उससे आगाह हो सके और उस आइंदा उस मामले से आप लोग अपनी हिफाजत कर सकें। अब कुछ बहुत अक्ल वाले लोग आएंगे और वो वीडियो के अंदर कहेंगे कि आप ये वीडियो उनको पर्सनल में समझा देते। तो ऐसे लोगों को बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको लगता है कि बहुत सारे लोग इसमें मुब्तला है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली को शेयर कर दें, अपने स्टेटस पे लगाएं, ताकि लोग भी इसको देखें और बच्चों की चीज़ खाने वाले लोग इससे तौबा करें, बच्चे को वो अंदाज़ा लगा के रकम या उतना पैसा उतनी चीज़ उसको वापस करें। और जिन्होंने मामला ऐलानिया किया है वो ऐलानिया इसको बच्चे को वापस दे के लोगों को आगाह करे कि मैंने इस हक़ को अदा कर दिया है नाबालिग के, क्योंकि शरीयत ने नाबालिग के हक़ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है। उसके हक़ पे कोई डाका नहीं डाल सकता, ना ही उसका वालिद, ना ही उसके भाई। अगर आप भी आसान तरीके से घर बैठे उर्दू पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारा बेसिक उर्दू कोर्स खरीदें। बच्चे और बड़े सभी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें varsistore.in पर या हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।